Let's start with first is free radicals. Okay, so free radicals, if you have basic idea related to, we need to go into the chemical atomic structure first. So every they are basically every atom, if I talk about, they are made up of your this human body or anything is made up of atoms. Okay, it may be of any kind of atom, oxygen, hydrogen, anything. So if we go into the chemistry, what you see, at the center of the atom, there is a nucleus, and around that nucleus, electron around the in their orbit, they continuously in the motion. Okay, so what happens ki when any single electron, basically the nature of electron is to be into pair. When any electrons exist freely and into the most outer cell, or they radiate from that particular atom, is known as your free radical. Okay, or nascent atoms we call. Okay, so free radicals are the ionized particles in the human body, and how these free radicals are formed. So they are formed when we are into the stress, any kind of stress, or food additives, or environmental toxins. Like if I talk about, I told you, like when we are exposed to too much of UV radiations, when we are exposed to too much of X-rays, or any kind of ultrasonic waves, or another waves. Okay, too much of heat. Okay, uh, in that scenario, too much of chemicals or toxins. So in that scenario, what happens? Ki, these free radicals, they are formed. Okay, when the oxygen is used by body during the normal metabolism. The normal metabolism हमारा क्या होता है? Respiration हो गया, digestion हो गया. ये सब बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उसके ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, whenever we are into stress or exposed to any kind of certain factors, in that scenario, what we will see, these free radicals will form. And it's not necessary that every free radical is bad. Okay, but sometimes they we have seen that they had a bad effect. How they will cause that bad effect? So they will help any kind of you know overgrowth, or the destruction to the particular cell, or something like this. But some free radicals are very useful to the body also, like they fight with the viruses, bacteria, and toxins. Okay, so they have both nature, if I talk about. So free radical actually helps the body to fight with the viruses, bacteria, and waste toxins. Okay, so I told you ki how these free radicals are formed. So if I talk in center, there is a nucleus. Nucleus is made up of neutron. Neutron has does not carry any kind of charges on the atom. They are neutral, as name indicates. Proton is positively charged particle. Okay, so neutron and proton is placed into the nucleus. Around that nucleus, there is an orbit. Okay, that orbit is circular orbit or elliptical orbit, in which what happens, your electron will continuously into the rotational motion. Okay, and they are bind with a certain amount of forces. Okay, with nucleus, if they are far away from the nucleus, so that force is your force from the center is loses out, and it will be easy for the particles, the electrons, to move out to the higher energy level. So in that scenario, they release it. Okay. So that's what it written over here. The human body is composed of many different types of cells. Cells are composed of many types of molecules, atoms, and these molecules and atoms are consists of proton, neutrons, and electrons. Electrons are evolved in a chemical reaction, and they are the substance that bonds the atom together to form a molecule. Okay. So why what is, I told you कि electrons का basic nature होता है stability पाना. Okay. आप periodic table में whenever you if you have any idea, periodic table में क्या होता है कि जो last आपका है 18th ग्रुप जो हम कहते हैं, ठीक है, 18th ग्रुप आपका नोबल गैसेस होती हैं या नोबल मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो नोबल मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्टिव नहीं होते. क्यों? क्योंकि उनके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, दे आर पेयर्ड. तो उन्हें बाहर से किसी से बाइंड करने की जरूरत नहीं होती है.
बट जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की बेसिक टेंडेंसी होती है कि दे वांट टू अचीव स्टेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट, सो इलेक्ट्रॉन साउंड्स और ऑर्बिट्स an atom one or more shells. The innermost shell is full. It has two. Okay. So just imitate आपका सेंटर में जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है और जिसको इनरमोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन इन नेक्स्ट आउटर में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपका सेकंड शेल से 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बेसिकली एवरी ऑर्बिट में और एवरी शेल सेकेंड के बाद एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट एटम से रिएक्ट करता है और एक स्टेबल कंपाउंड और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन का क्या बेसिक टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन के आउटर शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट ऑक्सीजन के में लैक कर रहा है, तो वो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो अपने कॉमन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके और इनका बेसिक वो कंप्लीट हो जाए, ओके। सो तो वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है, H2O वाटर बनाता है ताकि स्टेबिलिटी पा सके, ओके। So, most of the important structural feature of an atom is to determine the chemical behavior based on the electron and the outermost cell. तो ये periodic table में मैंने आपको एक just example दिया था कि जो लास्ट आपका ग्रुप होता है जो कि 18 ग्रुप हम नोबल मेटल कहते हैं, उसमें क्या होता है, व्हाट वी हैव सीन कि बेसिकली सब में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका आउटर मोस्ट शेल फुल होता है, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट सब्सटेंस कहलाते हैं, ओके। सो atoms reaches a state at the maximum stability जो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इट विल बी पॉसिबल बाय 2 मेथड्स। या तो आप इलेक्ट्रॉन को दूसरे से ले लो या अपने इलेक्ट्रॉन को दे दो, ओके। सो दिस इज व्हाट दे डू, यूजुअली दे बॉन्ड, ओके। एंड बॉन्डिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, जैसे मैं बता रही हूँ, O2 मॉलिक्यूल सिंगल ऑक्सीजन एनवायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि O2 में क्या करेंगे कि दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतना, 2 एटम्स के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उतना बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो दे आर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, ओके। सो एंड ऐसे ये बॉन्ड करके तो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं, ओके। So atoms often completed their outer shell by sharing the electrons with other atoms, okay. So या तो आप gain करें या lose करें या share करें, these are the only methods to achieve your maximum stability, okay. So usually they bond together to form stable. अगर आप lose करते हैं, lose करने में जो free रह जाएगा वो ही आपका free radicals होता है, okay. So normally bond did not split in any way or that leaves the molecule with ऑड और अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर यूजुअली बॉन्ड ऐसा नहीं बनाते ये लोग, बट इन सर्टेन सिनारियोज अगर वो बॉन्ड ब्रेक करता है, स्प्लिट होता है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड एटम है वो ही आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। बट व्हेन द बॉन्ड वीक्स और स्प्लिट्स, तो फ्री रेडिकल्स आर form and free radicals are very unstable and reacted quickly। क्योंकि फ्री है, अनस्टेबल है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि जो भी नेक्स्ट कंपाउंड है उसके साथ में रिएक्ट करके और स्टेबिलिटी पा सको, ओके। लाइफ में कोई भी इंसान है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि व्हेन यू आर इनटू योर टफ टाइम्स और into your very hard situationship, what do you follow? Certain times you don't think about moral ethics, तो थिंक अबाउट कि नो आई नीड दिस थिंग, आई नीड दिस थिंग, अगर ये नहीं हुआ तो जो है आई विल लूज एवरीथिंग। तो आप उस टाइम पे रॉन्ग मेथड से भी चीजों को फॉलो अप करते हो, अर्न करोगे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट कि बहुत कैरिसिटी हो जाती है किसी टाइम पे किसी चीज की इन सोसाइटी, तो पीपल, व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ पीपल, तो दे ट्राई टू स्टील कि जिसके पास भी होगा वहां से वो स्टील करने की कोशिश भी करते हैं, अगर वो कोई लाइफ सेविंग होता है तो। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इन सेम मैनर ओवर हेयर ऑल्सो, कि जब फ्री रेडिकल होता है वो अनस्टेबल हो गया, लाइक दैट पर्सन अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है।
बट उसको स्टेबिलिटी तो चाहिए कि नहीं ये करूंगा तभी ये सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी मेरी लाइफ की। तो वो क्या करता है कि स्टील करेगा वो चीज को अचीव करने के लिए, और ट्राई एनी यू नो wrong methods also. Same thing happens with these you know atoms also. So they bind with any of the molecules in order to achieve a stable state of reaction. Okay, so the free radicals are very unstable, react quickly with other compound and try to capture the need of electron and gain the stability. Okay, so free radicals are like robbers. I told you कि they will like that person ki wo uh, stealing भी करेगा. They are like basically robbers. Why they have to rob that thing? Because that person is not mentally that much strong, or that person is not if that much in state कि वो ethics और morals के wise या फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है कि वो चीजों को मार्केट से बाय कर सके, इसलिए वो रॉब कर रहा है. सेम थिंग हैपेंस विद दीज फ्री रेडिकल्स आल्सो कि वो इतना स्टेबल नहीं है, उसके पास एनर्जी की डिफिशियंसी है, उसके पास अपनी फंक्शनैलिटीज को अपने आप को लाइव रखने की बहुत स्कैरिसिटी होती है. इन दैट ऑन इन ऑर्डर टू अचीव दैट स्टेबल फॉर्म ये रॉब करते हैं. ओके, एंड इन ऑर्डर टू दीज, तो ये अटैक करेंगे किसी भी एनर्जी वाली चीज को स्नैच करने के लिए एंड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ. ओके, so these free radicals are highly reactive due to presence of their unpaired electrons. Okay, so any free radical if involving oxygen can refers to as reactive oxygen species. तो जो भी reactive होता है free radical form में होता है हम उसको reactive species called करते हैं वो particular का. Okay, so oxygen centered free radicals contain two unpaired electron in outer shell that I already explained you. Okay, in turn the newly formed radicals they look टू रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट. सो आप क्या करेंगे कि आप न्यूली किसी और के साथ बॉन्ड करके आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ एनर्जी को मेंटेन करूं, एंड उसके बाद से आप जो है उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ रिएक्टिव इवेंट्स और चेन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं. ठीक है कि आप इसके साथ भी रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसने कहते हैं नहीं आई एम तो ऑलरेडी बॉन्डेड, आई एम तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे. तो उस केस में क्या होगा, या तो आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएंगे या फिर आप गेन करते जाएंगे. तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है नॉर्मल ऑक्सीजन एटम से, और जो आप रिएक्टिव स्टेट में आ गए वहां से नॉर्मलाइज होने में भी अगेन a lot of continuous reactions will going on. Okay, so when the body has too many free radicals, इन दैट सिनेरियो डैमेज ऑकर्स. तो ये क्या करते हैं कि आपकी नॉर्मल सेल जो हेल्दी सेल है उस पे रिएक्ट करेगा ये, और उसको रिएक्ट करके क्या करता है, डिहाइड्रेट करेगा, डैमेज करेगा, एंड दैट्स द इफेक्ट वेयर योर फ्री रेडिकल कैन अफेक्ट योर लिपिड, कैन अफेक्ट योर प्रोटीन्स, कैन अफेक्ट योर डीएनए आल्सो. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि जब जेनेटिक में हमारा क्या आप देखे होंगे बहुत सारा जो है क्या कहते हैं कि जब कैंसर होता है तो बॉडी के स्किन में भी चेंजेस आता है, आपके हेयर्स में भी चेंजेस आता है, आफ्टर पोस्ट रिकवरी के बाद भी आप पेशेंट को देखते होंगे कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं. व्हाई? बिकॉज उसकी कहीं ना कहीं उसकी जेनेटिक मटेरियल्स में भी काफी चीजों में ये पर्टिकुलर जो आपका ये फ्री रेडिकल है या जो भी पॉजिटिव एजेंट है उसने काफी डैमेज ऑलरेडी कर दिया होता है. ओके, सो आपका एजिंग, कैंसर के केसेस में जब पेशेंट इफेक्ट होता है तो लूजिंग ऑफ हेयर्स और एजिंग, अर्ली एजिंग दिखने लगती है, सैगिंग ऑफ स्किन दिखने लगती है. व्हाई? दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट फ्री रेडिकल्स. ओके, so effect of free radicals can damage and increase over the time and leads to many age related diseases also. Okay, so what is the function of free radicals? So free radicals arises during some metabolism. Okay, and the metabolism of body's immune cell system purposefully created them to neutralize certain amount of free radicals. तो हम जो हेल्पफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं वो तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी कंटिन्यूसली उनको एज पर द नीड जनरेट करती है. बट normally body can handle this free radical, but if antioxidants are unavailable, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं अवेलेबल है तो क्या होता है, ये फ्री रेडिकल प्रोडक्शन बिकम्स एक्सेसिव एंड कैन डैमेज अकर. ओके, तभी मैं बोल रही हूँ कि कैंसर का डायरेक्टली जो रिलेशन होता है या जितनी भी सीवियर डिजीज कंडीशन है उनका जो डायरेक्टली रिलेशन है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट्स है. तो डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, सो इम्पोर्टेंस
of a particular importance is that the free radical can damage and accumulates with age. तो आपका जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होने लगता है फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आई कैन टेल कि आपका कितने टाइप का फ्री रेडिकल होता है. तो एक एंडोजेनस फ्री रेडिकल है, अनदर इज योर एक्सोजेनस फ्री रेडिकल. एज नेम इंडिकेट कि एंडोजेनस फ्री रेडिकल जो होगा वो आपका मोस्टली इनसाइड द बॉडी होगा. ठीक है, endogenous. Exogenous is from outside. Okay. So the most important free radicals in the body are a radical deprived of oxygen, better known as reactive oxygen species. Okay. So ये आपका क्या होगा कि O3 टू मतलब 3 molecules of O2 और सिंगलेट स्टेट में प्रेजेंट हो, जैसे कि सिंगलेट मतलब सिंगल फॉर्म में O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, OH रेडिकल प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO प्रेजेंट है, NO2 इज अ स्टेबल फॉर्म. ओके, सो H2 इज अ स्टेबल फॉर्म. तो उसमें क्या हो गया कि एक ऑक्सीजन हट गया. ओके, आपका O3O2 इज अ फॉर्म, और उसमें से हमने क्या किया कि हटा दिया सर्टेन, मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हटा दिया. तो जो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सिंगलेट स्टेट में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इट विल कॉज यू नो हाँ. ओके, तो ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स और सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स होते हैं जो बॉडी में बनते हैं. अदर आर द कार्बन सेंटेड फ्री रेडिकल्स, जो कि आपका कार्बन मॉलिक्यूल से अराइज होते हैं एंड ऑक्सीडाइज द रेडिकल ऑन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ओके, हाइड्रोजन बेस्ड भी होते हैं रेडिकल्स जो अटैक से बनते हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड सल्फर सेंटर्ड फ्री रेडिकल्स आर आल्सो देयर. सो द सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स, इनमें क्या होगा कि आपका एनायन और कैटायन दो फॉर्म्स होते हैं. सो रेडिकल एनायन बनता है बेसिकली, एंड ये क्या होता है कि सिंगल आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वजह से होता है. ठीक है, if I tell. Okay, and the major source of the superoxide is from the transfer of इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो इसमें क्या होगा कि हमने लूज किया, तो आपने जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, हर सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. वहां से जब आप लूज करना शुरू कर देते हैं, तो आपको क्या हो गया कि एनर्जी को लूज कर रहे हैं, जो कि आपका प्रॉपर सेल फंक्शनिंग में. तो आप जब एनर्जी लूज कर रहे हैं तो बाकी चीजें वहां नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलरली डैमेज वहां स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज अ सुपर ऑक्साइड. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 होता है. ठीक है, H2O2 भी आपका जो है एक स्टेबल है, बट इसमें से जब भी एक स्पीशीज निकल जाता है तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इसमें भी बनेगा. ओके, और इसमें क्या होगा कि बेसिकली इसका जो फ्री रेडिकल होगा वो OH फॉर्म में होगा, OH फॉर्म माइनस में होता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा कि किसी से भी रिएक्ट करके और ये सोचेगा कि मैं स्टेबल फॉर्म में आ जाऊं. तो बेसिकली ये क्या करेगा कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा. तो अगेन HOCl बन गया. अब इसका बॉडी में सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. ठीक है, न्यूट्रोफिल से रिएक्ट करके वहां से, तो न्यूट्रोफिल आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, अब वहां से आप क्लोरीन निकाल के और अपना स्टेबल फॉर्म बना ले रहे हैं. तो अगेन आपका क्या होगा कि वहां पे सर्टेन अमाउंट ऑफ आपका जो न्यूट्रोफिल है उसकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट हो जाती है. इन सेम मैनर अदर आपका भी अदर क्या कहते हैं फ्री रेडिकल्स भी बॉडी में इसी तरीके से बनते हैं. ओके, hydrogen oxide free radicals are there. Okay, then other, so what is the basically any free radical जब फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, तो स्कीवेंजिंग हाइड्रो, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल का, कि एंडोजेनस ऑक्सीडेंट जो है आपका मेलेटोनिन. मेलेटोनिन इज बेसिकली योर स्किन कॉम्प्लेक्शन को, मेलेटोनिन और ग्लूटाथायोन ये सब आपके स्किन टेक्सचर्स को मेंटेन करते हैं. तो जब आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो क्या करेगा कि इन चीजों को टारगेट करेगा. ठीक है, और ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. बट अगर वो बॉडी में इन नहीं है, डाइटरी में आपका नहीं है, तो आपका क्या होगा कि आपके डैमेजेस, फाइटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे, डैमेजेस बॉडी में स्टार्ट होंगे, और वो आपका एजिंग शो करता है. क्लियर? अनदर इज योर नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये आपका जो है बेसिकली मोस्ट कॉमन फ्री रेडिकल है.
जो कि आपका वेस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है कि ये एंडोथेलियम से डिराइव्ड होता है, और जो कि रिलैक्सिंग फैक्टर्स में डिराइविंग रिलैक्सिंग फैक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वेस्कुलर एंडोथेलियम जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है वो आर्जिनिन से प्रोड्यूस करता है बेसिकली। और इसका जो है आपका ब्रेन सेल्स और ब्लड वेसल्स में बेसिकली ये आपका रिलैक्सेशन मेथड्स को फॉलो अप करता है। बट अगर इनका इनहिबिशन हो जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है या बढ़ जाता है, तो ये क्या करते हैं, दिस इवेंट कैन स्टिमुलेट टू सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्यूमर्स, नेक्रोटिक फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन के और एक्सरसाइजेस को भी ऑल्सो इफेक्ट करता है। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा। ठीक है, so inhibition of production is known as reduced microcidal or tumorocidal activities of macrophages. Macrophages basically I told you and a process जिसमें क्या होता है कि सेल जो है, जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको खा लेता है, और बॉडी से इंटरल्यूकिन्स और लाइसोसोम्स के एंजाइम लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जिनसे वो लाइसिस कर देता है उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स को, और बॉडी से वेस्ट फॉर्म में निकाल देता है। बट अगर ये इनहिबिशन हो जाए, उस चीज के प्रोडक्शन में बंद बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये मैक्रोफेजियल प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो आप देखते होंगे कि जब कैंसर होता है पेशेंट को, तो व्हाट हैपेंस, बेसिकली उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स, जितना भी सीवियर कंडीशन, डिजीज कंडीशन में इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस होल प्रोसेस। ओके, so, nitrogen oxide is a key messenger in the cardiovascular system. Nitrogen oxide stimulates the growth hormone, it stimulates the immune system, it improves the memory cell, nerve cell, and plasticity. So, what you can see again, you can see कि memory का मैं बात करूँ तो memory loss is a very common, in later stage you can see. So why this happens with aging, कि sagging भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, या cancer patients में, या in general disease, severe disease condition में मेमोरी लॉस क्यों होता है? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स तो बॉडी में ओवर फॉर्मेशन हो गया, एंड इट विल लीड ऑल दीज कंडीशंस। ओके, सो अगेन पेरोक्साइड नाइट्राइट इज देयर, जो कि आपका क्या करता है आपका कि एपोप्टोसिस करता है। एपोप्टोसिस मींस कि सेल में आपका जो भी आपका ये क्या कहते हैं बैक्टीरियल कंडीशन होता है, इसको ब्रेक डाउन करना और उसका जो है नेक्रोसिस करना। ओके, सो दिस इज अगेन आप अपनी ही सेल को डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हैं। ओके, फिर आपका हाइपोक्लोरस एसिड होता है जो कि बैक्टीरियोसाइडल एजेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोमल प्रोसेस में ये काम करता है, लाइसिस करता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे पर्टिकुलर सेल में मास्ट सेल्स भी है, और सेल्स के आउटर पे आपके डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये आके अटैच हो रहा है, और वहां पे हिस्टामिन, मतलब कि हिस्टामिनल एंटागोनिस्ट, जो कि आपका फाइटिंग कैपेसिटी और इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में बढ़ जाता है, वो आके और इनका ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजों को लाइसेंस हो जाए, या इनका प्रॉपर प्रोडक्शन ना हो, या ओवर प्रोडक्शन हो, तो बॉडी में ये सारी कंडीशंस होते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन अगर इन आयंस का हो गया, तो डेफिनेटली इंसान थक जाएगा, उसको फीवरिश लगेगा। तो यू कैन सी दीज आर द डिजीज कंडीशन एंड सीवियर कंडीशंस वी कैन फाइंड आउट। ओके, ना एक्सोजेनस फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जो कि आपको आउटसोर्स बॉडी के बाहर से मिल रहा है। तो किस फॉर्म में मिलेगा? आइदर दे विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ओके, रेडिएशन फॉर्म में देते हैं हम, टोबैको स्मोकिंग से आप लेते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि सिलिका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, एस्बेस्टोसिस हो गया, मिनरल डस्ट। ओके, और ये क्या कॉज करेंगे? आपका लंग इंजरी कॉज करेंगे, या जो भी एस्बेस्टोसिस है बेसिकली, एस्बेस्टोसिस, क्वार्ट्ज और सिलिका, ये जो है, जो भी एस्बेस्टोसिस माइनिंग में काम करते हैं, उनको आप देखते होंगे माइनिंग इंडस्ट्रीज में मेजोरिटी ऑफ पीपल सफर्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बिकॉज वो इनहेलेशनल ये तीनों चीजें बॉडी के अंदर जा रही है, क्वार्ट्ज से, सिलिका, एस्बेस्टोसिस है माइनिंग इंडस्ट्री में। तो आपका जो जब ये इनहेल करते हैं, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाएगा, या पल्मोनरी कैंसर हो जाएगा। तो asbestosis is the condition which causes due to inhalation of over inhalation of asbestosis. Okay, सो अगेन ये सारा आपका कैंसरस कंडीशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, या डिजीज कंडीशन को
कंट्रीब्यूट करा है। अदर देन दिस हमारा ओजोन लेयर में डिप्लेशन है, उसकी वजह से क्या है कि गैसेस का भी, और क्या कहते हैं कि आई कैन से कि यूवी रेडिएशन अगेन दे एंटर इनटू द एनवायरनमेंट एंड दे अफेक्ट अस। ओके, so ozone is not free radical but most powerful oxidizing agent. Okay, ozone is O3. Okay, so to unpair electron and degrades under the physiological condition to OH. आपका प्रॉपर फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसको मिलेगा बॉडी के अंदर, तो वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये OH जो फ्री रेडिकल बनेगा, जो नीसेंट मतलब जो एक सिंगल ऑक्सीजन रिलीज हुआ एनवायरनमेंट में, वो रिएक्ट करता है बायोलॉजिकल सब्सटेंस से, एंड वो ओजोन कैन जनरेट द लिपिड पर ऑक्सीडेशन। और अदर कॉजेज भी हो सकता है कि फीवर है आपका, या कोई थेरेपी ले रहे हैं आप, या किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के अंदर है, तो इन केसेस में भी आपका ऑक्सीजन डेरिवेटिव रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सो ये आपका फ्री रेडिकल्स का क्या क्या है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो मैं आपको इतनी देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फ्री रेडिकल्स की वजह से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, मेजरली हम जो आप पढ़ेंगे कैंसर्स के बारे में इन डेप्थ, तो जितने भी कैंसर्स है 85 to 90% केसेस में ये जो मेन कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, दैट इज एन अलार्मिंग साइन। ओके, देन अनदर इज योर एजिंग, जो कि एज के साथ कॉमन है। देन डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे फीवर आ गया, या समथिंग लाइक द स्मॉल स्मॉल जो होगा, डिहाइड्रेशन हो गया, या ये सब कॉमन होता है। ओके, सो फ्री रेडिकल्स आर एनिमीज और फ्रेंड्स बिकॉज मैंने बताया कि इनका मिक्स रिस्पॉन्सेज मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। So although essentially the cancer and degenerative disease are major externally caused by the donor DNA by them. Okay, free radicals also play important role in cell metabolism. Okay, so आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी degenerative disease है या DNA related disease है, वो क्यों हो रहे हैं? Because of your free radicals. But immune system इन फ्री रेडिकल्स को यूटिलाइज करता है। अब यूटिलाइज करने के लिए आपको वहां पे एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ेगा। अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं देंगे, बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं अवेलेबल होंगे, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, आपके टिश्यूज में इन्वेड करेंगे एंड इम्यून सिस्टम को या बॉडी सिस्टम्स को अटैक करते हैं। सो अगर फॉरेन क्या कहते हैं कि इम्यून सिस्टम इज मेनली द बॉडी सिस्टम दैट यूटिलाइजेस दिस फ्री रेडिकल, but the foreign invaders damage the tissue and marked by the free radicals by immune system. So this allows the determination of which tissue need to be removed from the body. Okay, so body को determine करना पड़ता है कि किसको body से remove करना है, किसको store करना है। पर for this we need, the proper amount of antioxidant supplements. Okay, so decreased amount of antioxidant into the body can lead to the disease condition. Okay, clear? So free radicals, what it causes, and antioxidant damage prevent करता है उसको। ओके, सो एनर्जी क्या, स्ट्रेस क्या, टॉक्सिन क्या, ड्रग क्या, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, तो रिच इन ऑक्सीजन, एज नेम इंडिकेट्स, ऑक्सीजन, स्ट्रेस, ड्रग्स, एवरीथिंग को वो मेटाबोलाइज करके वो प्रिवेंट करते हैं डैमेज से, उसको प्रोवाइड करके। ओके, उसका एंटीडोट प्रोवाइड करके। ओके, सो nutritional antioxidants are attracted and considerable of interest as a potential treatment. Okay, तो आपका जितना भी न्यूट्रिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है वो आपका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस डिजीज का आपका ट्रीटमेंट, जो भी आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी है, एजिंग रिलेटेड है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कैंसर है, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई टोल्ड यू, मतलब लास्ट में अभी एंटीऑक्सीडेंट कैंसर रिलेटेड, तो आई टोल्ड यू एजिंग में आप देखते होंगे लोगों को, एवरी प्रोडक्ट इन मार्केट, अगर आपने एड देखा होगा तो कोई कहेगा कि वी आर सेलिंग विटामिन ई सर्टेन से, कि हम तो रेटिनॉल दे रहे हैं, रेटिनोइक एसिड दे रहे हैं, नियासिनामाइड दे रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड दे रहे हैं, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इज वेरी कॉमन। तो आपका जो विटामिन ई, विटामिन सी है, ये आपका कहाँ है, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ योर एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, तो आपके लोग को हम कहते हैं nowadays जो people are very conscious, तो सुपर सीड्स खाते हैं। सुपर सीड्स what they will contain, definitely they are rich in antioxidants. Okay,
सो एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली पीपल विल मूविंग टुवर्ड्स द एंटीऑक्सीडेंट, सो जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच सब्सटेंसेस है डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस that is present in low concentration relative to oxidizable substrate and reduces the oxidation. Okay, so as the name indicate, they combine with oxygen. क्योंकि आपने जितना भी देखा फ्री रेडिकल यूजुअली जो आपका ऑक्सीजन का मेजोरिटी में बन रहा है. ओके, तो उसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करें, एंटी ऑक्सीडेंट है. तो ये एंटी मीन्स के अगेंस्ट, तो उसको कंबाइन करके ऑक्सीडाइजेशन को जो है प्रिवेंट वो करेगा कि उसको बाइंड करके उसको स्टेबल स्टेट में लाएगा. ओके, सो दे आर द सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स द अदर केमिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डैमेजिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बाय रिएक्टिंग विद द फ्री रेडिकल. तो ये क्या करेगा कि मैंने आपको बोला कि इसके साथ बाइंड करके प्रिवेंट करेगा अदर बॉडी पार्ट्स को कि वो उस पर डैमेज ना कर सके. ओके, so during this reaction, the antioxidant sacrifice itself by becoming oxidized. Okay, so आपका क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, अपने आप के साथ उसको बाइंड करवाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके, सो द एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई इज नॉट अनलिमिटेड एज वन एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विद अ सिंगल फ्री रेडिकल. सो इसको आपको एंटीऑक्सीडेंट को आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट नीड ऑफ रिप्लेनिश, मतलब कि बॉडी में उसको रेगुलर फिक्स टाइम पे हमें सप्लीमेंट फॉर्म में देना पड़ता है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइटरी फॉर्म ऑफ डाइटरी फॉर्म्स के लिए भी जरूरी होता है. या तो आप इसको डाइट के फॉर्म में दे सकते हैं या एक्सरसाइज करके आप जो है एंटीऑक्सीडेंट जो स्टोर है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, सो द बॉडी डेवलप सेवरल एंडोजेनस, जो एंडोजेनस होगा वो आपको बॉडी से बाय वर्किंग आउट और बाय डिफरेंट मैकेनिज्म आपको जनरेट करना पड़ेगा. बट जो एक्सोजेनस है वो आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा आपको खा पी के. ओके, सो द एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड सुपर ऑक्साइड्स, डिस्म्यूटेज, ओके, एंड कैटालीज, जितने भी कैटालीज मीन्स की जो कैटालाइज होकर के कन्वर्ट होते हैं. ओके, एंड ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज. ओके, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं, इनकी कन्वर्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, सो ग्लूटाथायोन redox cycle is the central mechanism of reduction of intracellular हाइड्रो peroxidase. ओके, सो हाइड्रोजन peroxidase का जो प्रॉपर साइकिल चलेगा आपका वो ये होल प्रोसेस में चलता है. ओके, so these enzymes also require the trace metal cofactors. अब इस whole process को चलने के लिए हमें क्या चाहिए, certain amount of trace metals भी होता है, जैसे कि सेलेनियम ग्लूटाथायोन peroxidase के फॉर्मेशन के लिए चाहिए या मैक्सिमम एफिकेसी के लिए चाहिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, मैंगनीज चाहिए, आयरन चाहिए. ठीक है, कैटालिस फॉर्मेशन के लिए. तो आप ये देख रहे होंगे कि इन एंटीऑक्सीडेंट्स को काम करने के लिए भी हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए. क्यों, क्योंकि इस मेटाबॉलिज्म में ये जरूरी होगा. ठीक है, सो नॉन एंजाइमेटिक एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके एक्सोजेनस जो आउटसोर्स करते हैं आपको क्या क्या है, आपका विटामिन ई है, विटामिन ए है, एंड प्रो विटामिन ए. विटामिन ए और प्रो विटामिन ए ये सब आपका लिपिड सॉल्युबल है, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन जो भी होंगे उसमें विटामिन ई विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्लूटाथायोन और ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स. ये ग्लूटाथायोन एक टाइम के बाद क्या होता है कि बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो एजिंग आपका दिखने लगता है, जो मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन किया था. ठीक है, सो व्हाट दिस मॉलिक्यूल्स को कई बार हाँ आज की डेट में तो लोग कोलाजेनेज ग्लूटाथायोन एक्सटर्नली भी लेते हैं. ओके, सो अगर बॉडी प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, डाइटरी सोर्सेज में काफी में ये अवेलेबल भी होता है. ओके, so enzymatic and non-enzymatic antioxidant systems are intimately linked to one another and appears to interact with one another. Okay, so आपका ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर एंटीऑक्सीडेंट. सुपर ऑक्साइड, डिस्म्यूटेज, कैटालिस, ग्लूटाथायोन, पेरोक्सिडेज.
इनका रोल क्या होता है? तो डिस्मुटेज ऑक्सीजन टू H2O2 में कन्वर्ट करता है, कैटालिस जो है H2O2 को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, एंड ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो है ये रिमूव करता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड लिपिड पेरोक्साइड्स को बॉडी से। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ मेजर आपका एंटीऑक्सीडेंट जो होता है। उसके अलावा आपका अल्फा जो विटामिन ई होता है, अल्फा टोकोफेरॉल होता है, बीटा कैरोटीन होता है, एंड आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। ठीक है, विटामिन इज अल्फा टोकोफेरॉल एंड बीटा कैरोटीन इज विटामिन ए। ओके, सो ये सारे अगेन फिर आपका जो है रिएक्ट करते हैं, एंड जो भी जो फ्री आयंस होंगे उनके साथ रिएक्ट करके बाइंड करके उनको ट्रांजिशन मेटल्स या लिपिड पेरोक्साइड इन सब में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो now coming to one by one to every antioxidant, vitamin E is an effective of an inadequate vitamin E usually develops over a longer period of time and typically dedicate decades. Okay, so vitamin E आपका क्या होता है बेसिकली? बहुत लंबे समय में बॉडी से बनता है, इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी हमेशा हो जाती है। रिक्वायरमेंट एवरीडे प्रोसेस में बहुत ज्यादा है, बट प्रोडक्शन बहुत डिले प्रोसेस में होता है। ओके, सो वी हैव सीन कि आपका जितना भी क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर है, रेट्रोस्क्लेरोसिस, कई बार जो है इनकी डिफिशियंसी से इसको भी लिंक किया गया है। ओके, सो आई टोल्ड यू कि ये आपका पेरोक्सीडेज के साथ रिएक्ट करता है आपका, और क्या करता है कि मेम्ब्रेन का और सेल के डैमेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपका सेल, अब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल सेल कैंसरस में कैसे कन्वर्ट करता है, कि एक सेल को 1 to 2, 2 to 4 नॉर्मल सेल डिविजन मैकेनिज्म माइटोसिस मियोसिस का यही होता है। या तो अरिथमेटिकल होता है या जोग्राफिक जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है इनकी, सॉरी जोग्राफिक एनालिसिस, जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, मतलब 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके, या फिर 1 से 2, फिर वहां से फिर 1 से 2 कन्वर्ट होता है, ऐसे करके जो है इनका डिविजन चलता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि आप कंटिन्यूअसली किसी सेल को डैमेज करोगे, ट्रॉमा कर रहे हो, ट्रॉमा कर रहे हो, ट्रॉमा कर रहे हो, तो सेल को क्या होगा, ओवर द टाइम को बहुत ज्यादा अपना साइज को इंक्रीज करता है। तो जैसे कि आप क्या करेगा कि 1 से 2 तो बनेगा, फिर 2 से 8 बन सकता है, 2 से 16 बन सकता है, ऐसे करके जो है ये जब कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोसेस में जाता है तो वो सेल क्या करेगा कि वो मेच्योर नहीं होता है, ऑन्कोजेनिक होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कैंसर्स में भी। So this is the one condition I explained you. Okay, तो प्रॉपर सेल डिवीजन को लैक कर जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कांस्टेंट ट्रॉमा की वजह से, और बहुत ज्यादा सेल प्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से एक तरीके का कैंसर हो सकता है, जिसमें यहाँ पे अभी हैव डिस्कस की कैंसर। ओके, सो टोकोफेरॉल जो आपका हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल है उनके साथ इंटरैक्ट करके और रिमूव करता है। ठीक है, एंड बिफोर इट इंटरैक्ट, वो इंटरैक्ट करे आपके मेम्ब्रेन के साथ, आपके प्रोटीन के साथ, आपके लिपिड के साथ, और फिर अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाए, उससे पहले क्या होगा कि ये हाईली रिएक्टिव होगा विटामिन ई, तो ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करके और रिएक्ट कर लेगा, तो ये बाइंड कर लेगा, तो वो बाकी किसी के साथ रिएक्ट करके इंजरी कॉज नहीं करता है। ओके, so vitamin E is also suitable, stimulates the immune response, body की जो immune response है, fighting capacity. Okay, so उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये responsible होता है and inhibits the cancer. Okay, so I told you कि why these antioxidants are very important. तो आपका कहीं ना कहीं कैंसर से इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज जितना भी आपका पिगमेंटेड सब्सटेंस ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स प्रेजेंट होता है, उसमें आपका बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन आपका गाजर, रिच इन बीटा कैरोटीन, विटामिन ए के लिए आप गाजर खाइए, दैट इज वेरी रिच। ओके, सो देयर आर 600 carotenoids found in the food supplements. Okay, and their mostly forms are alpha carotene, beta carotene, lycopene, quercetin, और जियांथिन्स, कैंथाजियांथिन्स, जेनाजियांथिन्स। तो जियांथिन्स आपका जो भी आप कहते हैं ना, कि मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि आपका कैरोटीन मैंने बोला आपको गाजर से मिलेगा। ओके,
मैंने लाइकोपीन कल एक्सप्लेन किया था, टोमेटो से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से ज़ैंथिन्स, आपके जितने भी ब्रिंजल है और कलर्ड कलीफ्लावर्स है, इनमें ज़ैंथिन, या टोमेटो में भी आई थिंक सो, टोमेटो कह रही हूँ, अनियन में शायद ज़ैंथिन होता है, आई एम नॉट श्योर। बट आप ये देखिए कि नेचर में जितना भी कलरफुल सब्सटेंस है, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स अभी तक मैंने बताया, उनमें आपको ये आपको ये सोर्स ऑफ आपका मिल रहा है, कैरोटीनॉइड्स का सोर्स उधर से मिल रहा है, ओके। सो बीटा कैरोटीन इज मोस्ट वाइडली स्टडीड एंड कंपोज्ड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए ज्वाइन टुगेदर। तो आपका रेटिनॉल जो होता है बॉडी में, रेटिनॉल दो एक साथ ज्वाइन करके आपका बीटा कैरोटीन बनाते हैं, ओके। So dietary beta carotene is converted to retinol at the level of intestinal mucosa. तो बॉडी में जब हम गाजर खाते हैं उसमें रिच इन विटामिन ए, पपाया में विटामिन ए होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब उसको बॉडी में इंजेस्ट कर रहे हैं फूड में, जब वो डाइजेशन से इसोफेगस से पेरास्टालिसिस मूवमेंट के बाद जब स्टमक में रीच करता है, वहां से जब इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन में आता है, तो वो उसी लेवल पे, म्यूकोसा लेवल पे जब बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वहीं पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा उसको रेटिनॉल में कन्वर्ट कर लेता है, बीटा कैरोटीन को, ओके। एंड ये बेसिकली मैकेनिज्म बीटा कैरोटीन का क्या होता है कि ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑटो ऑक्सीडेशन को प्रोड्यूस करता है, दिस प्रोसेस इज, ओके। सो आपका जितना भी सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगलेट ऑक्सीजन, उनके साथ ये रिएक्ट करता है, ओके। सो आपका इम्यून एनहांसमेंट अगेन ये करेगा, म्यूटाजेनेसिस को और ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। म्यूटाजेनेसिस मीन्स कि आपका जो म्यूटेशन प्रोसेस है डीएनए में, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है डीएनए में, उनको जो है ये इनहिबिट करता है सेल के अंदर जो चल रहा है, ओके। और रिग्रेशन और प्री मैलिग्नेंट लीजन्स को प्रिवेंट करता है, जो भी आपका प्री मैलिग्नेंट लीजन्स है, जो आपका सेल अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टीज को लूज कर रहा है, उनको ये प्रिवेंट करता है, ओके। नेक्स्ट इज योर एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज योर विटामिन सी। जितना भी आपका सिट्रस, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड नेम इंडिकेट्स, ये ना सिट्रस फ्रूट जितने भी होंगे जिसको खा के आपको खट्टा फील होता है, उन सब में ये अवेलेबल होता है, जैसे कि पोटैटोज, टोमेटोज, ग्रीनी लीवी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, ठीक है, आंवला, ऑल दीज थिंग्स विल कंटेन योर एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। सो इनका क्या है कि ये कीमो प्रिवेंटिव होता है। कीमो मतलब कि जो भी आपका केमिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होता है, उसमें ये बेसिकली इन्वॉल्व होंगे, और आपका जो प्रिवेंट करेंगे, कीमो प्रिवेंटिव मीन्स कि आपका कैंसर फॉर्मेशन सेल्स को, कार्सिनोजेंस के प्रिकर्सर्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको बनने नहीं देते कंपाउंड्स को बॉडी में, ओके। सो इफ द वाटर soluble chain breaks antioxidants, it challenges a free radical and react to the oxygen molecule. And detoxification. So you can remember the two mechanism basically of vitamin C is कि आपका एक तो डिटॉक्सिफिकेशन, आप यूजुअली देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि वी वांट टू डिटॉक्सिफाई, जो अल्कोहलिक ड्रिंकर्स हैं या कुछ टाइम पे लोग बाहर खाते हैं या डाइट कॉन्शियस लोग, दे वांट टू डिटॉक्सिफाई। तो जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स होते हैं उसमें आप देखते होंगे, मोस्ट कॉमनली मैं बताऊं तो हम यूज करते हैं जिंजर हनी लेमन वाटर, ओके। ल्यूकवार्म वाटर में आप जिंजर को थोड़ा सा बॉईल करते हैं, उसके साथ आप क्या करते हैं कि 1 स्पून ऑफ लेमन ऐड करते हैं, एंड 1 स्पून के लिए 1 होल लेमन ऐड करते हैं, 1 स्पून ऑफ हनी ऐड करते हैं, दैट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक, ओके। अदर ड्रिंक्स भी होता है, आप ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें भी काफी लोग लेमन को ऐड करते हैं। काफी लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये ब्लैक कॉफी, तो उसमें आप हाफ लेमन ऐड करते हैं, इट विल मेटाबोलाइज द थिंग्स वेरी। तो आप यू कैन सी कि कितना अच्छा एस्कॉर्बिक एसिड का है, मेन मैकेनिज्म आपका डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। नेक्स्ट व्हाट इट डज इज टू द बॉडी इज कि आपका कैंसर सेल्स को फॉर्म नहीं होने देता है, उन कंपाउंड्स को बॉडी में फॉर्म होने से प्रिवेंट करता है, ओके। सो ऑल्सो जो आपका क्या कहते हैं कि इट हैज शोन दैट द ascorbatate इज मोर पोटेंट देन अल्फा टोकोफेरॉल टू बाइंड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। उसमें क्या देखा गया है कि ये जो आपका अल्फा टोकोफेरॉल है, उसकी कंपैरिजन में
आपका विटामिन सी जो है उससे जल्दी से बाइंड करके ऑक्सीडेशन करता है, इजीली करता है। ओके, सो and this is what, okay, so आपका vitamin C also contributes to the regeneration of membrane और bound to the oxidized vitamin E और बहुत सारे अलग supplements। सो आपका जो प्लाज्मा में या स्किन में काफी टाइम पे आप देखते होंगे कि स्किन का बहुत इश्यूज है ये वो, तो लोग एजिंग के लिए भी विटामिन सी का यूज करते हैं, लोग कैंसर के लिए भी विटामिन सी का यूज करते हैं, ठीक है, सीवियर डिजीज कंडीशन में। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वन डे इफेक्ट विल नॉट कम, आपको डेली उस चीज को उतना अमाउंट में बॉडी में लेना पड़ेगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल, तो इजीली बॉडी से फ्लैश आउट हो जाता है। ओके, सो अदर एंटीऑक्सीडेंट्स विल बी योर ग्लूटाथायोन, ठीक है, ग्लूटाथायोन जो है इजीली सिंथेसाइज इंट्रासेलुलरली इनटू द बॉडी, सिस्टीन ग्लाइसिन और ग्लूटामेट फॉर्म में ये बॉडी में बनता है। एंड ये आपका जो भी है बाइल में या डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द डाइटरी एक्शंस में इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को प्रिवेंट करता है। तो अगर आपका ग्लूटाथायोन अच्छे अमाउंट में बन रहा है बॉडी में, तो आपको स्टमक रिलेटेड कैंसर्स इजीली नहीं होते। ओके, सो लेडी फिंगर में मैंने आई हर्ड की गुड अमाउंट ऑफ ग्लूटाथायोन इज प्रेजेंट। ओके, उसके अलावा अदर कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स Q10 इज अगेन ये आपका जो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया कॉज करता है। एंड ये भी आपका इम्यून डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो फ्री रेडिकल्स को आपको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्री रेडिकल्स से और इम्यून डिफेंस को प्रमोट करता है। एल्ब्यूमिन अगेन फ्री रेडिकल्स को जो है स्कैवेंजर के तौर पे सर्व करता है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को इंक्रीज करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है अगेन आपका ये क्या कहते हैं कि आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। मेलेटोनिन इज वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। Melatonin is also known as a biological clock human body. Okay, melatonin आपका biological clock भी होता है। सेकेंड थिंग आपका जो है ये क्या करता है, आपका कॉम्प्लेक्शन को भी काफी हद तक के मेंटेन करता है। ओके, सो melatonin is a such and powerful antioxidant, easily cross the cell membrane and blood-brain barriers and undergo the redox reaction। और आपका melatonin once oxidized cannot be reduced its form state। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या हो गया कि एक बार ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल, सुसाइड कर दिया उसने। ठीक है, तो मेलेटोनिन का सुसाइड कैसे होता है कि वो एक बार अगर किसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट के साथ बाइंड अप हो गया, किसी ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो गया, तो वो डेथ ही होगा उसका। ठीक है, वो रिवर्स फॉर्म में नहीं आता, तो दैट इज नोन एज सुसाइडल। ओके, यूरिक एसिड is acted as an endogenous radical scavenger और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। यूजुअली जो है आपका मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका यूरिन मेटाबॉलिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो अगेन आपका जो भी सिंगल ऑक्सीजन है या आपका परऑक्साइल फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीजन OH फ्री रेडिकल्स के साथ ये बाइंड अप करता है। एंड ये आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन का इंडिकेशन भी देता है, जैसे कि आपका जब हाई यूरिक एसिड लेवल होता है तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हम पेशेंट में देखते हैं। ठीक है, अदर देन दैट आपका इस्टमिक कंडीशंस भी, इस्टमिक स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, इन सबको भी इससे कोरिलेट किया जाता है। ओके, एंड दिस माइट बी बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ प्रो ऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है। ओके, सो अदर देन दिस हम ड्रग्स के फॉर्म में भी काफी आप ये एंटीऑक्सीडेंट्स को बॉडी में देते हैं, स्पेशली टू क्योर द पेशेंट। ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़ैंथिन ऑक्साइड्स होते हैं, आपका ये क्या कहता है लाइकोपीन ऑक्साइड्स होते हैं, जो हम ऐसे बॉडी में आउटसाइड सोर्सेज से देते हैं। फिर NADPH इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से, एल्बुमिन दे रहे हैं बॉडी में, स्टैटिन्स दे रहे हैं, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स दे रहे हैं, ये सब हम बॉडी में एक्सटर्नल सोर्स से दे रहे हैं। ठीक है, तो डाइटरी सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोमेटो हो गया, कलर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, आप देखिए, आप 11 टोमेटोज विटामिन A,
30 ब्रोकली, सेलेनियम, फिर ब्लूबेरीज होती हैं 96 एंटीऑक्सीडेंट ब्लूबेरी, 5 कप टी, और ये आपका जो है क्या कहते हैं ग्रीन टी जो है उसमें भी बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया। मैंने बोला आपको कि लोग यूजुअली पीते हैं बॉडी क्लेंजिंग के लिए, या आपका विटामिन ई, आपका जो ये क्या कहते हैं समर्स में आता है वो, दैट इज नोन एज, अदर देन मस्क मेलन, मस्क मेलन में आपका होता है, ठीक है। फिर आपका कैल्शियम, एस्पर एस्परगस, और ये क्या कहते हैं ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स हो गए। ओके, so these are the different reasons where you can get super seeds, or you can get from dry fruits. So a lot of health supplements are present into the market, और नेचुरल सोर्सेज जहां से आप अपना एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी में फिल अप कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस आई कैन से कैंसर कैपेबिलिटीज के लिए एंड डिफरेंट डिजीज कंडीशन के लिए। सो पोटेंशियल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स एंड डैमेज ऑफ हेल्थ। तो आपके ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या आपका क्या करते हैं बेसिकली कि किसी सेल इंजरी को प्रिवेंट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रमोट करते हैं, और आपका जो भी डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम और सेल डेथ और डैमेज और ओवर प्रोडक्शन है उन सबको कंट्रोल करते हैं। तो आपके यूजुअली जो है कैंसर में प्रिवेंशन करेगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज में प्रिवेंशन करेगा, एंड इवन एल्टीट्यूड सिकनेस को भी प्रिवेंट करता है। ओके, तो ज्योग्राफिकली इफ वी कैन सी, तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं रिच इनटू द एंटीऑक्सीडेंट, उनका प्रोडक्शन ही हिल्स में होता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज वहां पे इन चीजों की जरूरत होती है। तो ज्योग्राफिकली जिस एरिया में जैसा फ्रूट चाहिए वैसा वहां प्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज अगेन So, through the initial studies suggested the antioxidant supplements might promote the health. Later, or large clinical trials with a limited number of antioxidants detected no benefit, even suggested that extra supplements with certain oxidants may be harmful. But what happens? The antioxidant that reducing agent can also act as a pre-oxidant. For example, vitamin C has antioxidant activity when it reduces oxidized such as hydrogen peroxide. It can reduce metal ions that generated the free radical. So you can see कि ये सिर्फ directly उनको bind नहीं करता है, but they will act as your pro-oxidants also, जैसे कि जो metal ions उन free radical को bind कर मतलब formation को promote करते हैं, उनके production को भी body में ये decrease करता है। So paradoxically, the agents are normally considered antioxidant, can act as conditional pro-oxidants and increase the oxidative stress. Okay, so you can see कि how it is important. Okay, so body में इनका balance होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं ले रहे या ओवर ले रहे हैं, अगेन इट विल हार्म। ओके, सो ओवर भी ले लिया आपने तो हीट जनरेट हो जाएगा, टू मच ऑफ हीट। अगर टू मच ऑफ हीट जनरेट हो गया बॉडी में तो डिहाइड्रेशन होगा, ड्राइनेस होगा। सो अगेन it should be taken into the balanced amount. Okay, clear till now whatever we have studied? Yes, ma'am. Okay, so lastly is जो if I talk about कि हमने आपका जो भी है फ्री रेडिकल्स, आपका बेसिकली जो मेजर है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स एवरीथिंग इज इन बैलेंस, बट जितने भी प्रेजेंट सिनारियो में डिजीज कंडीशन हो रहे हैं, जैसे ऑटो इम्यून है या बॉडी इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म में हमारा था, जो भी चीजें हैं, तो उस कंडीशन में हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी पड़ेगी। इन केस ऑफ कोविड व्हाट वी हैव सीन कि वी सजेस्टेड कि व्हाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब विटामिन सी, लिमसी, जो आपने डेली बेसिस पे लोगों ने अपने डाइट में ऐड किया, इवन दो कोल्ड है, थ्रोट इन्फेक्शन है, बट विटामिन सी दिया गया। व्हाई इट इज गिवन सो? ताकि वो जो भी आपका टॉक्सिन्स बन रहा है बॉडी में या वो है, तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको प्रमोट करे। सेकेंड थिंग, आपका जो फॉर्मेशन है, बाइल प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कफ, और इनको सप्रेस करे। सो आपका जो विटामिन सी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस मैकेनिज्म।
सो ओवरऑल डेली बेसिस पे बाकी हम कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल 10 टैबलेट्स फॉर्म में हमने कोई भी मल्टीविटामिन दे दिया या वो तो फैट वाला स्टोर्ड है, बट वाटर सॉल्युबल फ्लैश आउट हो रहा है, तो उसको आपको डेली बेसिस पे रिप्लेनिश करना पड़ेगा. ओके. So free radical, other than this, free radical can induce endogenous responses which protect against the exogenous responses. Okay. So आपका क्या है कि आपका जो भी एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया इतने टाइम में कि जो एंडोजेनस है बॉडी के इनसाइड है फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन कैन एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑल्सो. ओके. सो आपके जो गुड फॉर्मेशन ऑफ एंडोजेनस जो बन रहा है, जो नॉर्मल मैकेनिज्म में बन रहा है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस में ओवर ग्रोथ जो मैंने आपको बोला था कि बैक्टीरिया का लाइसिस कर रहा है और क्या कहते हैं कि फंगल लाइसिस कर रहा है, नॉर्मल मैकेनिज्म सेल साइकिल में जिन चीजों की जरूरत है वो जितने अमाउंट में बन रहा है वो तो डेफिनेटली आपका लाइफ स्पेन एक्सटेंड करेगा. बट फॉर एग्जांपल जो एंडोजेनस रेडिकल्स हैं जो आउटसाइड से हो रहे हैं वो क्या करते हैं आपका कि वो बॉडी में एंटर करके और आपकी लाइफ स्पैन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं टॉक्सिन पास में. तो माइटो हार्मोसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इंडक्शन ऑफ लाइफ स्पैन prevented by antioxidant, providing a direct evidence that the toxins radical may mitoharmonically extend the health and promoting effects. Okay. So आपको क्या हो रहा है, हार्मोसिस मीन्स कि फेवरेबल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जिसमें कि आपको लो अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स को दिया जाता है और अदर स्ट्रेसेस को दिया जाता है, और इससे क्या होगा कि आपका बॉडी का मैकेनिज्म वर्क करेगा और जिनसे उन यूजफुल का प्रोडक्शन होता है. और आपका लो डोज में टॉक्सिन्स दे करके हम क्या कर रहे हैं कि आपके बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म को और नॉर्मल एक्टिविटी फंक्शनैलिटीज को जो है प्रिवेंट कर रहे हैं. ओके. सो आपका जो सेल डैमेज है या जो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का प्रोसेस है उसको प्रिवेंट कर रहा है. ओके. सो ये कैसे करते हैं हम, तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज डाइट में करने को बोला, तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रेसेस होते हैं, एक्सरसाइज से सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी को डिमांड होती है, तो जो भी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फैट्स विटामिन होता है वो बाहर आता है और फिर वो यूटिलाइज करता है. ठीक है. अब एक्सरसाइज से क्या होगा कि कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है. व्हाई वी आस्क्ड कि एक बंदा जो डेली एक्सरसाइज करता है उसकी कैपेसिटी डिजीज कंडीशन में भी अच्छी होगी as compared to एक बंदा जो sedentary lifestyle जी रहा है. Okay. So again you can see कि how it will going to affect. Okay. Next is another factor if I talk about is your no clear effect on the risk of chronic diseases uh, and heart disease in long run. Okay. So आपका जो है क्या कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का हम अगर बात करें, ठीक है, तो कैंसर से रिलेटेड आई हैव सो मेनी पीपल्स जिसमें हम आप देख के मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया कि आपका जब कैंसर हो जाता है तो हम ओरल कैंसर्स में बेसिकली कि दिस इज व्हाट वी प्रिस्क्राइब लाइकोपिन. ओके. अनदर कैंसर्स में हम क्या करते हैं कि हम मैंने और भी कैंसर्स की अगर जनरल बात करूं तो हम जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया रिलेटेड हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं. So this suggests that the health benefits of fruits, vegetables come from other substance in fruits, vegetables or coming from a complex mix of compounds. So हमें exactly ये नहीं पता कि वो मतलब हम जो इफेक्टिव फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें वो कॉम्प्लेक्स मिक्स कंपाउंड्स फ्रूट से डायरेक्टली डिराइव होकर उसका इफेक्ट है या आपका पर्टिकुलर वेजिटेबल या पर्टिकुलर सोर्स एज अ सिंगल का इफेक्ट है. तो दीज आर द हायर लेवल रिसर्च विच इज गोइंग ऑन की फॉर एग्जांपल अगर मैं लेमन की भी बात करूं तो उसमें विटामिन सी के अलावा हो सकता है और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हो, तो आप उसको एक्यूरेटली वी नीड टू चेक कि पर्टिकुलरली उनके मिक्सचर का इफेक्ट है पूरे कंपाउंड जो लेमन में पाया जा रहा है या पर्टिकुलरली एप्पल में जो सिट्रिक एसिड और अदर मैंगनीज जिंक जो भी है सिलिका है उसका कॉम्प्लेक्स इफेक्ट होता है उस डिजीज कंडीशन में, या फिर पर्टिकुलरली विटामिन सी या विटामिन ई या सिलिका जो या मैंगनीज पाया जा रहा है उनका है इम्पैक्ट. ओके. So these are the different types of research which we are going currently into our dietary antioxidants, and a lot of researchers are into very positive कि yes in current scenarios हमने
पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करके देखा है एंड उनके इफेक्ट जो है बॉडी में बहुत अच्छा आया है. ओके, so diet play an important role into the reduction of oxidative damages to the body. Okay, so the role of dietary antioxidant is not limited to the antioxidant chemicals, minerals, vitamins alone, but yet to know the combination of all these. Okay, so that I already explained you कि हम अभी भी ये research में we are into the process कि जो fruits है vegetables है उसमें particularly that particular antioxidant is playing important role और combination. जैसे कि आप मैं किसी भी फ्रूट की बात करूँ जैसे भी चीकू होगा उसमें आपका सिलिका पार्टिकल है, मैंगनीज पार्टिकल है, ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट आता है बॉडी में या पर्टिकुलरली किसी का आता है. ओके, so the supplements and pills of the individual antioxidants are not being showing the prolonged life or improved health. Okay, तो particularly आप for example अगर हम कोई भी disease condition में antioxidants देते हैं तो along with antioxidants we need to give another things also in disease condition. So still we are going under a lot of researches, but yes, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू कि आपका नॉर्मल मैकेनिज्म को ये डिले तो करता ही है, मतलब जैसे कि एजिंग को विटामिन सी डिले करता है, ठीक है. आपके फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, सैगिंग ऑफ स्किन है, इसमें आपका विटामिन सी डेफिनेटली. अब इसके साथ नियासिनामाइड भी लगाना है, सैलिसिलिक एसिड भी लगाना है, रेटिनॉल अगेन इट इज डिलेइंग योर एजिंग प्रोसेस, स्किन की एजिंग को, फेशियल एजिंग को डिले करता है. दैट इज अ प्रूवन टेस्ट. ओके, अब कितने क्वांटिटी में किसको सूट करता है दैट इज अ वेरिएशन. ओके, सो अगेन वी आर कि इंडियंस की स्किन पे कितना है. अब एसपीएफ इफ आई टॉक अबाउट ना, एसपीएफ फॉर फॉरेनर्स सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर इंडियंस इट इज नॉट. व्हाई? बिकॉज वी हैड अ मेलेटोनिन इन आवर स्किन. ओके, जो कि हमें व्हीटिश कलर, ब्लैकिश कलर देता है, ठीक है. बट इन फॉरेनर्स दे आर टोटली वाइट, उनके में मेलेटोनिन प्रोडक्शन नहीं है, तो उनके लिए सनस्क्रीन इज वेरी नेसेसरी. अगर वो एसपीएफ 50-60 निकल लगा के बाहर ना निकले तो यूवी रेडिएशंस विल इम्पैक्ट. बट हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हमारा जो मेलेटोनिन लेवल है ऑलरेडी बहुत हाई है, तो हम नहीं भी लगाए तो हमें उतना बुरा इफेक्ट बॉडी पे नहीं मिलता है. ओके, सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट जोग्राफिकल रीजन है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका वाटर है, फूड है, what kind of temperature you are bearing, again a lot of factors are there. So इन सब चीजों को still we are into the process कि कॉम्बिनेशन है या सिंगल प्रोडक्ट है जो इम्पैक्ट कर रहा है, तो अभी बहुत सारी रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन इन दिस. ओके, बट श्योर वी हैव सीन कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट्स में होते हैं, ठीक है, एंड इनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है कीमोथेरेपीज और इन सब में आप देखेंगे. तो अलॉन्ग विद ड्रग हम एंटीऑक्सीडेंट पेशेंट को डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं. ओके, क्लियर? सो विद दिस antioxidants are over. Okay. I in first class, I think. So I gave you one assignment. I don't know how many of you have done that or not. Okay, I gave you assignment related to carbohydrates or something. So just make handy notes for yourself in day to day, and it will be helpful. Okay, right? So Okay, with ma'am. this, I'm ending. And tomorrow we are going to discuss one or two diet plans related to patients. Okay, like डायबिटिक पेशेंट में क्या डाइट प्लान होना चाहिए, और कैंसरस पेशेंट को देना है तो या एनीमिक पेशेंट को, वन और टू डाइट प्लान आई विल डिस्कस. ओके, बिकॉज डाइट प्लान इज अ होल लेंदी प्रोसेस, तो वो पूरा तो नहीं कर सकते हैं, बट इन जनरल जैसे मैंने कल थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, मैं एक दो डाइट प्लान कल आपके साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड एक दो डिस्कस कर लूंगी. सो यू विल गेट मोर क्लियर पिक्चर ऑफ दैट. ओके, Okay, ओके देन, ओके. सो आई एम ma'am. एंडिंग दिस लेक्चर. Okay, ma'am.